तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त दुनिया को देखने की ज़रूरत है। वो ऑलवेज प्रमोट सच सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कि आप किसी दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे आप ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ को ਪ੍ਰਮੋਟ ਕरें। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਰੂਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ हुकूमत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मुलव्वस है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब के साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तानी जो सिख कम्यूनिटी है उनका सरापा एहतजाज है। हरदीप सिंह का जो कनाडा में कत्ल हुआ और ज़ालिमाना जो भारतीय मुजालिम है वो बेनकाब हुए, और हम इनसे बात करते हैं कि आज लाहौर में जो सिखों की रैली निकली हुई है भारत के ज़ालिम के ख़िलाफ़, उनसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी जो सिख हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। सरदार जी, की कहोगे तुसी कि भारत का ये ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਤਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਰੂਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ हुकूमत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲव्वस ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਲਪਲਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇਗੀ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਤਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ युद्ध करना भी जानते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रमेश सिंह साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि हरदीप सिंह के कत्ल के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी देखिए जी, इस वक्त ये जो कत्ल हुआ है दुनिया में इस वक्त इसका शोर मचा हुआ है, क्योंकि भारतीय साजिश नाकाब हुई है, बेनकाब हुई है। जब भारतीय साजिश बेनकाब हुई तो उसके पीछे पता लगा कि इंडियन एजेंसी रॉ का हाथ है, और ये बात पाकिस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तानी मीडिया नहीं कह रहा, ये बात एक बहुत आला शख्सियत कनाडा की जो उनके प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो वो कह रहे हैं, और वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कह रहे हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त दुनिया को देखने की ज़रूरत है कि भारत जो अपने आप को सेकुलर कहता है, भारत जो ये क्लेम करता है कि आई एम सो कॉल्ड सेकुलर, इन फैक्ट द रियल फेस ऑफ इंडिया इज़ कि दे आर द वन हु ऑलवेज प्रमोट अनरेस्ट, who always promote such sort of activities कि आप किसी दूसरी जगह पे जाके वहाँ पे आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। पाकिस्तान पिछली 7 दहाइयों से दुनिया को ये बताने में पीछे नहीं हटा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, लेकिन दुनिया इसको सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि दुनिया के नज़दीक भारत एक पुरअमन मुल्क है और वो बड़ा सेकुलर है। सो आज ये जो वाक़या हुआ है इसने दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अब तमाम वो तंजीमात जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग हैं यूनाइटेड नेशन को, दे नीड टू थिंक अबाउट इट, दे मस्ट कंसीडर आवर वॉइस, बिकॉज नाउ द वॉइस ऑफ सिख कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब इज़ कि हूसोएवर इज़ इन्वॉल्व्ड उसको ही शुड बी टेकन टू द टास्क, and should not be taken to the task as per Indian law, should be taken to the task as per the Canadian law, because the land of Canada is used for this barbaric act, और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मुकदमा है ये कनाडा की अदालत में चले। जब कनाडा की अदालत में ये मुकदमा चलेगा तो फिर कैनेडियन अदालत
आइडेंटिफाई करेगी इसके पीछे कौन है। अच्छा सर, खालिस्तान क्या इस वक्त इसके बाद जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी या तहरीक जो चल रही है खालिस्तान की वो रुक जाएगी? आपका ताल्लुक मीडिया से है जी जी। और आप बहुत सारी बीट्स कवर करते हैं और आप बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स को देखते हैं। क्या आपको लगता है कभी तहरीकें ख़त्म होती हैं? तहरीक ख़त्म नहीं होती, तहरीक वक्ती तौर पे दब जाती है। और उन्होंने ये दबाई कैसे? जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा के। तो ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी और इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाई है ये तहरीक को दोबारा खड़ा करने में रोल प्ले करेगी। अब ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी। अच्छा, तो पैगाम क्या देंगे भारत? भारत को क्या पैगाम देना है? भारत किसी की सुनता है? भारत को पैगाम नहीं देना, अब दुनिया को पैगाम देना है। अब दुनिया को पैगाम ये देना है कि देखें, भारत को देखें। जिस भारत को आप अमन का गहवारा कहते थे, हकीकत में अमन नहीं है। वो दुनिया के अंदर दहशत गर्दी को फ़रोग दे रहा है। वो दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। जब दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है तो फिर जो ख़तरा बन रहा है उस ख़तरे को आप अभी से रोकें, अदरवाइज़ वो दुनिया को अपने ख़तरे की लपेट में ले लेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौर प्रेस क्लब के सामने जो है वो सरापा एहतजाज है। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी जो है यहाँ पर मौजूद है लाहौर प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर इसलिए सरापा एहतजाज है कि कनाडा के अंदर जो सिख कम्युनिटी का इंचार्ज थे वहाँ पर हरदीप सिंह, जिसको कत्ल कर दिया गया और ये जो जुल्म किया गया है भारत की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ जो है आज सिखों ने एहतजाज किया हुआ है। और ख़ास तौर पर खालिस्तान के जो इंचार्ज थे हरदीप सिंह, उनका कत्ल जो है वो इनका ये कहना है कि वो ज़ाया नहीं जाएगा और इसके ऊपर जो खालिस्तान की जो तहरीक है उसको और ज़्यादा जो है वो ज़ोर पकड़ा जाएगा। और ख़ास तौर पर जो सिखों को कत्ल करने का जो जुल्म इस वक्त जारी व सारी है उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो तमाम सिख कम्युनिटी, चाहे वो पाकिस्तानी है, भारतीय है, कैनेडियन है और पूरी दुनिया के जितने भी सिख हैं, वो सरापा एहतजाज है। मुझे अपने मेज़बान शाहबाज हैदर, मेरे कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।